Also guys, another change happened. ऐसे एकदम ना detachment issues होते हैं ना, किसी से तुम detach हो रहे हो, leave everything, how are you, how are you That's the feeling? sweetest question I know. Oh God, क्या chemical लोचा होता है. तुझे दिख रहा है मैं नहीं बोल रही, तुझे दिख रहा है मैं जवाब नहीं दे रही आगे, तो चुप हो जाना. रीडिंग बुक्स के बहुत बेनिफिट्स होते हैं. बहुत ही weird बात है ये. How can you not know this about me? I'm offended. How do you know that he's the one? And इतना पैनिक कर रहा था कि oh God, अगर मैंने बोला this is so normal for Diksha and I. you have to have a healthy relationship also. Like your actual healing happens when you get into a relationship. What's up, sister? Hi guys, I'm Pritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Did you miss us, guys? We missed you guys. We missed you. We missed you guys. So many updates. Yeah. So many things to talk about. But So many things happened. It's been 2 weeks. हमने 1 week का gap बोला था, but 2 weeks का हो गया because कृतिका और मेरी दोनों की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. We were just sleeping, eating, having medicines and Yes. sleeping, and I that's think it. Diksha की तो she was quite. Yeah. आज तक मेरी तबीयत ऐसे कभी खराब नहीं होगी. माइग्रेन साथ में हिट हो रखा है, कोल्ड एंड कॉफ है, एंड नोज पूरी ब्लॉक्ड है. मतलब ब्रीदिंग में मुझे इतनी प्रॉब्लम, इतने इश्यूज हो रहे थे एंड इतनी कंजेशन, तो बहुत ही ज्यादा गंदा था. एंड 21 आवर्स हम स्ट्रेट सो रहे थे. इमेजिन, मतलब उठते थे हम फिर सो जाते थे. सो मुझे ऐसा लगता है कि if you don't rest, this is your sign, like your body forces you to rest, and वो ही हुआ था. Exactly. We pushed ourselves so much, very grateful and very happy that we pushed ourselves. But मुझे ऐसा लग रहा है वो इतने months से ना चल रहा था back to back. There was travel, work, and in general we were shifting, True. moving. A lot of things were happening together, and हमें लग रहा था like we are superwoman. But that's your body saying we need rest, and that's what happened. And I feel so recharged. I feel so happy and मतलब sorted. Like I feel I needed it. एग्जैक्टली सेम. आई ऑल्सो नीडेड इट. बट पता नहीं यूजुअली क्या होता है जब भी ऐसे तबीयत खराब होती है ना, दैट यू गो इन टू दैट गिल्ट वाला साइड. बट इस बार ही नहीं हुआ मेरे को रेस्ट करते हुए. इस बार ऐसे लग रहा था कि एवरीवन इज ऑन ब्रेक and we're just resting. And actually में after Diwali everyone just reset themselves. I feel जैसे बाहर लोग क्रिसमस के बाद करते हैं, हमारे यहाँ पर दिवाली के बाद करते हैं. Yeah. But I did feel bad कि oh what are we doing? We're sitting, we're sleeping, we're eating food and we're not working. And I'm sure any working individual जो regularly jobs करते हैं या फिर business अपना कुछ भी कोई कर रहा है, if you're working on a daily basis, इतना paradoxical चीज़ है ना, you feel I need a day off, I need a day off. और जब वो day off आ जाता है आपको लगता है I need to get back, I need to get back. हमेशा ये होता है. So I think वही हुआ था. But I've read so many articles, I've heard so many podcasts, उसमें हमेशा ये बोला जाता है कि stop feeling guilty about taking a break. Like that's how you recharge yourself. The trees also, they don't blossom all throughout the year, right? Yeah. तो उनके भी phases होते हैं. That's how अगर आप 6 months 7 months अपना पूरे उस पे जाते हो, your body needs some rest to recharge and gain, and especially in creative fields I feel. आप creative field इतनी ऐसी energy होती है कि you can't fake it. मतलब आपको like all your energy और channelize करके आप अच्छा कुछ create करो, उसके लिए you need some time off. So वही हुआ था. That's really But true. जो biggest change हुआ है guys, अभी ठंडी हो गई है guys दिल्ली में, and you can see we're wearing hoodies, and this is jacket. I'm a hoarder. I think this is very clear. I've shared this with you guys a lot of times. And कोई मेरी closet अभी दीक्षा मेरी closet आके देखेगा तो बोलेगा कि क्यों है, मतलब कॉलेज का भी सामान क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पर. बहुत सारा, लिटरली इतना सारा सामान है. लाइक ऑल्सो गाइज, अनदर चेंज हैपेंड. वी हैव शिफ्टेड टू गुड़गांव फुली एंड फाइनली. बट या देयर सम स्टफ हमारी ओल्ड हाउस पे. लाइक अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड अपने पुराने घर पे ही कर रहे हैं बिकॉज देयर सम स्टफ कृतिका और मेरा ही बचा हुआ है, एंड वी हैवंट फाइनलाइज्ड ऑन अ स्टूडियो, सो आई स्टिल वेटिंग फॉर इट. और ये सारा सामान हमारे न्यू हाउस में नहीं जा सकता, सो we had no place to shoot, so that's why we came back Yeah. for shoot purposes only, and then we'll go back to Gurgaon. So अभी वो सारा भी बहुत ज़्यादा scenario चल रहा है, and we've been living in East Delhi since we were born, and it feels so, I don't know, ऐसे एकदम ना detachment issues होते हैं ना, किसी से तुम detach हो रहे हो, like we won't be coming back here. And literally I'm 26 turning 27 soon, and she's 31 years से ईस्ट दिल्ली में रह रहे हैं हम. बहुत ज़्यादा ऐसा थोड़ा सा वो आता है कि ये सारी रोड सब कुछ पता है क्या है, ऐसा अपना अपनापन सा लगता है. बट व्हेन वी गो टू गुड़गांव इट्स वेरी न्यू फॉर अस. बट नाउ आई फील, स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बट व्हेन वी केम बैक टू ईस्ट दिल्ली येस्टरडे आई फेल्ट ओ नो, आई लाइक दैट प्लेस मोर. मतलब इतना क्लीन एंड सब कुछ वहाँ पर, एंड नाउ it's growing on me, I think, slowly. Yeah, I think वैसे भी with everything we need to give time. ऐसे इतना drastic change को I think time भी लगता है. But coming back to my hoodie guys, मैं ये बोलने वाली थी, closet से hoarding से लेकर hoodie पे आते हैं. This
OD has been so popular. Forever 21 ना हाँ, Forever 21 and H&M है ये H&M का collab है, Justin Bieber and H&M का H&M collab है है. ना? And I remember someone messaged me on Snapchat and बहुत सारे लोग ना पूछ रहे थे कि where is this hoodie from, और ये out of stock हो चुकी थी तब तक. I think it's been 4 years if I'm not wrong. And I told that person I'll gift it to you. And ये मेरी क्लोजेट में गुम गई मैंने इंटेंशनली नहीं करा था, वरना मैं देख लो गाइस, वापस पहन कर बैठी हुई है ये झूठी. मैं बोलती भी ना, वरना गिफ्ट कर दूंगी. और पर्सनल मैसेज पे बात हुई थी, ऐसे कौन सा मैं पब्लिकली डाल रही थी. एंड समहाउ आई लॉस्ट दिस, तो मैंने आई थिंक कुछ और सेंड करवा दिया था. बट आई फाउंड दिस हुडी अगेन और मैंने सोचा व्हाई नॉट वेयर इट. आई लव दिस. मुझे बहुत कूल लगता है. फॉर द ऑडियो लिसनर्स आई एम एक्सप्लेनिंग, क्या जस्टिन बीबर का फेस ब्लैक एंड व्हाइट में है एंड ये वॉश्ड आउट वर्न आउट हुडी होती है ना, बिल्कुल वैसी सी. एंड इट्स सो कम्फी, इट गिव्स मी कम्फर्ट. ऐसे 2-3 आइटम्स होते हैं ना, whenever like you're confused you reach out, no brainer है, you can wear it again and again. So I think this is that. ऐसे बहुत सारी sweatshirts होती है, इससे sentiments भी बहुत attached होते हैं. Like whenever you see that तेरा declothing की 2-3 hoodies, I'm really attached to that because, और even shirts तेरी first collection किया है गाइस. दीक्षा को 4 years होने वाले declothing को. 4 years. जब ये podcast live जाएगा आई थिंक सो उसके 2-3 दिन बाद 28th को मुझे 4 years हो जाएंगे declothing को. It's been 4 years. मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि 4 years. Your baby is all grown up now. Yes, that's true. 4 years. Oh God. I'm making a video for declothing and जब मैं वो realize कर रही थी ना that कितने changes आए हैं, कैसे the main reason why I started it and still that reason is there, but बहुत ही ज़्यादा drastic changes भी आए हैं मेरे vision में और brand में. बहुत सारे changes आए हैं, बहुत सारे additions हुए हैं and जो कि मैंने सोचा नहीं था कि शायद मैं कभी ये करूँगी. My vision was very straight. Products में I just wanted sweatshirts, joggers and oversized t-shirts. That's it. But now there's so much and so much is coming too. Yes, and we are excited. Sissy, how are you in general? I'm very, very normal. Normal वाला? Very, very normal. मतलब अभी I did one questions Q&A on Instagram and होते हैं ना कुछ लोग ऐसे पूछते हैं actual में leave everything, how are you, how are you That's the feeling? sweetest question I know. Sweetest, but मैंने उसका question पढ़ा, I was like how sweet, but you know when you take rest and when you're on medications and everything you get that small period of time for yourself जिसमें you're still recovering from fever and everything, तो मेरा mind पूरा shut हो जाता है. And when I recovered, I was in the process of recovery, तब भी मेरे को ऐसे मेरा माइंड ऐसे बिल्कुल शट हो जाता है. देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, कुछ भी मैं फील नहीं कर रही होती उस टाइम पर. एंड व्हेन आई फील अच्छा हाउ एम आई फीलिंग, तब भी कुछ समझ नहीं आता. यू नो जो सिर्फ माइंड में चल रहा था ओ यार जल्दी से ठीक होना है, फटाफट ठीक हो जाए. बिकॉज अभी तूने मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर नॉट ग्रेटफुल अबाउट बट यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट एवरी डे. किसी ने नीचे कमेंट करा, शट कर दिया था. क्या बकवास क्वेश्चन. नहीं मैंने पूछा बोला था नहीं, मैं तुझसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रही थी कहती बंद कर दे यार मत पूछ. मेरा ना एक्चुअल वैसे भी मैं इतना बात करने का मन नहीं करता और जब मेरी तबीयत खराब होती है आई जस्ट don't want anyone to talk to Guys, me. no. I would like to explain. इतनी बार ऐसा हुआ है. Diksha in general, she's not like very chatty. Like she's not someone who will go out and oh what's happening in your life ये वो. She's the one who listens a lot, है ना. तो जब भी मेरे days होते हैं जब मुझे बहुत मन कर रहा होता है कि oh I want to share this. She's a very good listener though. वैसे बोल रही हो तो सुन रही होती है और उसके बाद बोलती है तुझे दिख रहा है मैं नहीं बोल रही, तुझे दिख रहा है मैं जवाब नहीं दे रही आगे तो चुप हो जाना. मैं बोलती हूँ किसी ने पूछा किसी ने पूछा. Guys comment down below. Guys comment down below. अगर हम दोनों को देखा जाए तो आप अगर आपके siblings Who हैं can तो you आप relate to? Yeah, who can you relate to more? I personally feel मेरे को लगता है every week if we do podcast ना मेरा उतने में हो जाता है. podcast 1 घंटा बात करके मेरे conversations हो चुकी है. But मैं अब consciously ना ये try कर रही हूँ change करने का अपने अंदर. Good. After that conversation we had I was like यार बेचारी कितनी बातें करती है, मुझे अपने अंदर change लाने की need है. मैंने उस दिन सोचा था उसके लिए मैं सोच रही हूँ I should start reading book. But मुझे लगता है when I read a book तो you're just reading book right? Mind में you're just reading book. तो उससे क्या relation होगा of building a conversation? नहीं बट आई थिंक रीडिंग बुक्स के बहुत बेनिफिट्स होते हैं. आउट लाउड पढ़ेगी एक तो तेरा बाकी चीज़ें ठीक होंगी. लाइक यू विल बी एक्सपोज टू डिफरेंट वर्ड्स, तेरी वो क्या बेटर होएगी, तेरा ब्रेन बेटर फंक्शन करेगा. कॉन्वर्सेशन आई थिंक मे बी यू कैन टॉक अबाउट की व्हाट यू रेड, हाउ यू फेल्ट, कोई कैरेक्टर के बारे में. ChatGPT से क्वेश्चंस पूछा करूंगी मैं अगली बार. Tell me an icebreaker question. Tell me a question to build a conversation. I would like to know this, like in general, and everyone should comment in the comment section below. आप किस सेक्टर से belong करते हो? Are you someone who likes to talk and share their emotions, or you're on the opposite spectrum? You like to listen more and you don't like to talk. Like how do you express yourself when you feel? जब तुझे ऐसे मेरे तो दिन में इतने सारे थॉट्स हो जाते हैं, मुझे लगता है मुझे ये भी बताना है. मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती रहती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ ये कर रही हूँ. इन जनरल आई लाइक डॉक्यूमेंटिंग एंड शेयरिंग व्हाट्स हैपनिंग. तो यार आई डोंट नो, मुझे लगता है आई
have evolved as a person. When I was 16 and 17, I used to be a chatty person a lot. Like अगर मैं स्कूल में भी देखूँ तो मैं थी बहुत ज़्यादा. Like I still remember हमारा 4 friends का ग्रुप होता था and we used to talk a lot and I used to talk a lot. Literally मेरे को वो बोलते थे सबसे ज़्यादा तो बात करे. But I've changed as a person and sometimes I feel ये वाला change necessary नहीं था to like shut my emotions. And I personally feel like sometimes there are things going around me and मैं इतने ज़्यादा emotions अपने shut कर लेती हूँ that I don't feel that situation or feel that happiness properly. अगर happiness भी है या फिर sadness भी है मैं properly उसे feel ही नहीं कर पाती. मुझे लगता था transition जो मेरा हुआ था like college में भी इतना कुछ हुआ था and I can just relate to that trauma which happened with me in college. तो मुझे लगता है that thing changed me as a person. When I wanted to heal from that thing. Unknowingly, I just shut my emotions off. And वो vampire की तरह ना button off ही हो गया. जैसे vampire में नहीं हो जाता अपना emotional button off करना ही. But if you want to go back, you can try. Yeah. मतलब you can try ऐसे छोटे-छोटे and you're right because I think I was discussing it with someone else also the other day कि we both are very different like how we function. We've gone through a lot of shitty times together also and separately also in our personal lives in general. And ये चीज़ में I think मेरे साथ भी होती है कि मुझे भी ऐसा लगता है I'm not able to फील हैप्पीनेस और सैडनेस उस लेवल पे क्योंकि आई रेड दिस कि कभी आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है ना तो वो ऐसे ही प्रोटेक्ट करता है आपको यू फॉरगेट ऑल द मेमोरीज आल्सो आई डोंट रिमेंबर मोस्ट ऑफ माय आई रिमेंबर एवरीथिंग हाँ यू हैव अ वेरी गुड मेमोरी दैट वेज इफ यू टॉक अबाउट मे बी माय पास्ट तो मुझे पूछेगी ना कुछ ऐसा बता लाइक व्हेन यू आई डोंट रिमेंबर दैट्स योर ब्रेन प्रोटेक्टिंग यू अब तेरा ब्रेन तुझे सप्रेस करके प्रोटेक्ट करता है यू डोंट लाइक शेयरिंग टॉकिंग तुझे लगता है यू आर सप्रेसिंग योर इमोशन दैट वेज एंड मे बी आई एम मोर चैटी दैट वेज कि आई वांट टू टॉक वो वाले सेंस में होता है बट इफ यू वांट टू गो बैक देयर देन रिमेंबर लाइक एक ऐसा टॉपिक जो तू सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है स्टार्ट विद दैट इट कैन बी मेकअप और लाइक फिटनेस आई थिंक आई शुड स्टार्ट रीडिंग अ बुक एंड आई शुड लुक फॉर अ बुक जहाँ पर ये कॉन्वर्सेशंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली कोई बुक हो आई शुड ऐसे कौन से 5 टॉपिक्स है जिससे यू आर लाइक रियली कंफर्टेबल मेकअप ओवरसाइज क्लोथिंग ऑब्वियसली क्लोथिंग फैशन कार्स I love cars. और क्या होगा डॉग्स इन जनरल यार गोइंग आउट एंड योर फ्रेंड्स आर सिटिंग एक कोई ऐसा टॉपिक होता है तुझे पता है इस पे तो मेरे को नॉलेज है तो वो कौन सी चीज है मेकअप नहीं जैसे फ्रेंड ग्रुप्स तो तेरा दोनों मिक्स्ड है ना हाँ बट डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग तो अगर कोई क्वेश्चन पुट अप कर रही है ना देन आई हैव नॉलेज आई कैन स्पीक अबाउट दैट बट इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू पुट अप अ क्वेश्चन इफ आई एम सिटिंग विद समवन आई विल सिट लाइक वेरी साइलेंटली एंड उसके बाद मेरे माइंड में वो भी चल रहा होगा शिट एम आई बोरिंग दैट पर्सन एम आई बोरिंग दैट पर्सन तो मैं कोई भी क्वेश्चन पुट अप करूंगी बट वो इतना स्टूपिड क्वेश्चन होता है कि वन लाइनर में आंसर किसी का खत्म हो सकता है बट कॉन्वर्सेशन उससे बिल्ड नहीं हो सकती राइट आई कैन बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन इफ समवन स्टार्ट्स अ कॉन्वर्सेशन मे बी ऐसे ही स्लो स्टार्ट कर लेट द अदर पर्सन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन बट बी इंटरेस्टेड तू अगर ये सोचेगी ना आई वांट टू नो दिस पर्सन हाउ डू यू फंक्शन हाउ डू यू डू दिस देन अपने आप कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक होगी जैसे फॉर एग्जांपल हम दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ओ व्हाट डू यू डू आई एम एन आर्टिस्ट ओ व्हाट काइंड ऑफ maybe तू sketch draw करती है what do you like doing when you go to work or what do you do except your work or but do you the like conversations I hold with people are those people जिनको मैं जानती हूँ जिनका I know everything small talk तो even I don't like हाँ that's okay small talk नहीं तुझे in general you wanna be more expressive that ways ना वो कर next time से so that I can feel everything normally like 16-year-old Deeksha used to feel I want to feel everything like that because sometimes there are situations like also guys अभी यहाँ पर ये चीज स्टार्ट हो ही गई है major change happened in my life oh guys वो कैसे भूल गए Sissy bought a car I bought a car और मेरा literally मेरा ये बचपन से गोल था I am so into cars and everything तो मेरा बचपन से गोल था that I want to own a car and not that कि मैं ले नहीं पा रही थी पहले भी but ये था कि मेरे अंदर वो courage ही नहीं आता था to just go and buy a car and इतनी बड़ी चीज में मैं इन्वेस्ट करूँ या फिर मनी शेड करूँ इतनी बड़ी चीज में तो मेरे अंदर करेज ही नहीं आ रहा था सो आई नेवर यूज्ड टू जस्ट गो आउट मैं बोलती थी सबको आई वांट अ कार आई वांट अ कार आई वांट अ कार बट होता नहीं था बट फाइनली वन डे आई डिसाइडेड टू नो आई नीड अ कार आई वेंट एंड बॉट अ कार सो वो जो इमोशन था ना वो मेरे लिए एक काइंड ऑफ अचीवमेंट थी लाइक I have achieved so many things also जो online नहीं है and we don't like to share it. The car उससे बड़ी चीज offline हम achieve कर चुके हैं but car एक achievement थी मेरे लिए because I always wanted to buy a car. Like my first goal was to just buy a car. And जब मैं वहाँ पर गई ना मेरे को ये चीज लग रही थी that वो emotion I couldn't feel like properly. I was
इन द फ्रेम बट आई वॉज नॉट फीलिंग एवरीथिंग लाइक जो मैंने सोचा था, बचपन वाली दीक्षा ने सोचा होगा कि मेरे को कैसी फीलिंग आएगी ऐसा कर कर. बट आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड लाइक डे बिफोर yesterday and he was driving my car. I was like, I still don't feel like I bought a car. This is my car. I still don't feel. उसने मेरे को बोला क्या था, दीक्षा, now we are grown ups, now that we don't get attached to materialistic things and maybe that's what happens sometimes. He was like, जब बचपन में ना ये सारी चीजें बहुत बड़ी लगती थी, like cars and ये सब चीजें. Now that we are working and we are working for our own things and everything, we have achieved so many things that ये materialistic चीज़ों से ना इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आपको एक normal emotions या फिर hugging your person and ये सारी चीज़ें जो normal चीज़ों से आपको खुशी मिलती है. तो I was like, yeah, right, maybe you're right. Maybe कहता है वो खुशी आपको सिर्फ 5 minutes के लिए लगती है, वो मैंने ले ली कार, बट उसके बाद वो वाली खुशी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि हम इतना कुछ अब काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो ये नॉर्मल फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करते हैं आजकल की लाइफ में. दैट्स वेरी ट्रू. ये मैंने इमोशन भी फील करा था. वंस यू गो एंड बाय अ कार, लाइक इफ योर गोल इज टू बाय अ कार, देन you go and achieve that goal, you will feel that emotion for बहुत ही कम time के लिए. You will feel that emotion because that is materialistic. But अगर आप कोई एक normal relation या फिर कोई आपकी relation में चीज़ अच्छी हुई है या कुछ हुई है, you will feel that emotion for a longer period of time because materialistic things tend to hold that capacity of emotion for a shorter period of time, I feel. तो इसलिए मुझे लगता है that ऐसा, मतलब I don't know, पता नहीं क्यों हुआ, but मुझे लग रहा था when I was there, I still wasn't feeling every emotion that I wanted to feel as a kid. When you grow up also, जब एक तो first of all आप birthdays पे सबके साथ होता है, birthdays पे you're supposed to feel so happy and a lot of people, most of the people cry on their birthdays and even I've gone through the same thing. जब आपको ज़बरदस्ती आपको लगता है कि मुझे ये emotion feel करना है and sometimes you can't reach there also, या आप वैसे in general अपने mind में इतना set कर चुके हो ना, तो आपको वो भी आपकी expectations ही वो कर देती है. यही मैं तेरी कार लेने गई थी ना जब, तो I was happier. हाँ, जैसे जब मैं तेरी कार लेने गई थी तो मेरा You were रोना छूट happier. गया था कि हाँ. हाँ actual में I was crying and everything. हाँ, yeah. तो वो चीज़ होती है क्योंकि तब मेरे पे कोई वो नहीं था ना. आई वॉज जस्ट हैप्पी फॉर यू एंड मुझे ऐसा लग रहा था मेरे लिए इमोशन था, नॉट कार. मेरे लिए था ओ माई सिस्टर बॉट अ कार वाली चीज़. मुझे लगता है हम ना उस टाइम पर ऐसे भी होता है ना, बर्थडे से भी होता है, इतनी एकदम से टेंशन मिल रही होती है तो वो तो कूल Off हो बर्थडे जाता है, yeah. सबके सब तुम्हारे ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, सबके सब हो रहा है, जैसे And but बर्थडे then भी होता है. nobody believes. मैं कभी किसी को बोलती हूँ ना, I'm an introvert या ये सब चीजें, या मुझे टेंशन पसंद नहीं है, तो एक दो मेरी फ्रेंड्स बोलती कृतिका you do this for a living, but people don't understand. कैमरा आपके हाथ में कंट्रोल्ड है, आप एडिट कर सकते हो, no one's behind the camera. और इतना टाइम हो गया हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया, we can talk to a camera. But like मैं एंटर भी कर रही हूँ किसी पार्टी में, 3-4 लोग इकट्ठे आके मिल जा रहे हैं, मुझे तब भी लगता है इधर इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, मुझे मत देखो. बिकॉज उस टाइम ऐसा लगता है यू गेट हाइपर विजिलेंट कि आपको सब देख रहे हैं, आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, एंड आप स्टूपिड चीजें बोल देते हो यार, जस्ट टू मेक एवरीवन. बट आई एम गेटिंग बेटर. आई थिंक दीज लास्ट 2 years मुझे ऐसा लग रहा है सबकॉन्शियसली आई एम वर्किंग ऑन दीज फैक्टर्स कि आई वांट टू इंप्रूव दिस. एंड जैसे तू बोल रही है ना कि तुझे अगर पर्सनालिटी वाला और मे बी कॉन्वर्सेशन बेटर बिल्ड करने के लिए ऐसे छोटे छोटे वे में इंप्रूव करते ना, आई थिंक थेरेपी ऑल्सो रियली हेल्प मी. मुझे लगता है थेरेपी एक्चुअली लाइक यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ एज अ पर्सन, एंड स्पेशली फ्रॉम समवन हु इज न्यूट्रल. They don't love you. They're not your friends. They're not They your family. don't hate you, yeah. They don't hate you. But like वो आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं, एंड यू इम्प्रूव एज अ पर्सन. मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स पता लग गई हैं और मेरी वीकनेसेस भी पता लग गई हैं, एंड ये भी पता लगा है ड्यूरिंग थेरेपी कि इट्स ओके टू हैव दोज वीकनेसेस. यू कांट बी परफेक्ट, एंड दैट्स व्हाट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इज इन जनरल. फ्लॉज सब में होते हैं, एंड अगर कोई फ्लॉलेस होगा ना, देन obviously they're just pretending to be flawless. Yeah. They can't be flawless all the time. Everybody has flaws, and I feel everybody has their own flaws, but अगर वो किसी और की आई से देखे तो उनको वो flaws नहीं दिखेंगे, but हर एक इंडिविजुअल की आई से different flaws होते हैं. Right? और बहुत डिफरेंट होता है हाँ, सबकी चीजें. exactly. अगर मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है तुझे शायद वही चीज तेरी अच्छी एक नहीं को लगे. yeah, kind Yeah. of. So it's different. Same चीज. I think I was discussing with someone last week, and this person was sharing कि I would want my partner to work. I would never want my partner to sit at home. तो मैंने बोला बट दूसरी फ्रेंड की कॉन्वर्सेशन मेरे माइंड में आई थी, who told that I would want my partner to sit at home because मैं चाहूँगा कि मेरे पास सारा टाइम हो या ये सब चीज़ हो. तो मैं जब दोनों की कॉन्वर्सेशन लेके ना, मुझे ये समझ आ रहा था कि किसी के लिए वो बिल्कुल टर्न ऑफ है और किसी के लिए वो कितना बड़ा टर्न ऑन है. एंड दोनों चीज़ें गलत नहीं है, मतलब आपकी अपनी चॉइसेस है, आपकी वो है. हाँ, यू शुड नेवर फोर्स एनीवन
कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ तो तू ये नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है ये नहीं करना चाहिए कभी भी. आई लाइक गर्ल्स हु आर थिक सो यू गेन वेट, आई लाइक गर्ल्स हु आर वो यू लूज वेट, ये सब चीजें एक्सेप्ट द पर्सन. बट किसी के लिए कोई कितना अट्रैक्टिव और किसी के लिए कोई कितना है. ओह गॉड गाइस, अभी मैंने स्नैपचैट खोला, मैंने इस पर डाला था रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट. किसी ने लिखा हुआ ब्रो अब तो दे दो ये हुडी. लाइक मैं बोल रही थी ना ये एक्चुअली यार इट्स सो वियर्ड. मुझे ऐसा लगता है कि किसी को याद नहीं होगा. अब 4 साल पुरानी बात भी किसी को याद होती है. हाउ कूल, हाउ स्वीट, लव यू गाइस. या मैं क्या बोल रही थी कि किसी के लिए वो टर्न ऑन. हाँ, किसी के लिए वो टर्न ऑन है, किसी के लिए वो टर्न ऑफ है. लाइक द सेम वे तू बता तेरा क्या, फिर मैं एक बताऊंगी तेरे लिए क्या टर्न ऑन है एक उसमें जो तुझे लगता है इट्स कंट्रोवर्शियल. It's controversial. कंट्रोवर्शियल लाइक Like I love men with beard, and I don't think so. You love men with नो, beard. आई लव मैन विद बियर्ड. No, but तू No, हमेशा तेरा ये बोलती है कि वो beard है, without beard कैसा लगेगा? I don't know. No, I love men with beards. See, how can you not know this about me? I'm offended. पता नहीं मेरे को लगा that your choices of men. नहीं, I तू felt that you don't like men with beard. तू अपनी बता Turn off. जो तुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इट माइट बी बट फॉर यू इट्स. मेरे को पता है एक. क्या? तेरे रिलेशनशिप वाइज ही बताऊं हाँ. कि जैसे Siam is in like this industry, a lot of people get scared. Yeah. कि Oh. this person won't be loyal and this person will be not a part of a relationship in a healthy way. But I think उसका opposite है. चचोर. Yes. है ना? एक बहुत ही मतलब बहुत ही weird बात है ये. I was in this conversation like two guys were talking and they were talking about their turn-offs. And Oh, this is interesting. one guy, he was like, I don't want to share this, I don't want to share this, there are girls around and I don't want to share this, but we were playing a game, so he had to share this turn off and uska turn off इतना weird था and I've never realized that लोगों का इतना ऐसा भी turn off होता है. Like he was like, one day I was making out with a girl and almost having sex and everything, and in the middle of the session he was like, I saw a hair on a hair on a boobs. It was just standing like this. He उसने ऐसे करके पूरा explain कर रहा था. I saw a hair on a boobs and it was there and he was like, I couldn't just go any further and it was a big turn off for me. When I was like, is this a turn off? It's very normal to have hair. Like लड़कों की पूरी बॉडी में हेयर होते हैं तो इतने बड़े क्या हो गया. एंड एक और लड़का बैठा हुआ था, इट्स नॉट अ टर्न ऑफ फॉर मी कि क्या हो गया, इट्स नॉर्मल. एंड आई ऑल्सो फेल्ट इट्स नॉर्मल. बट इमेजिन कि सब बहुत लोगों के ऐसे भी टर्न ऑफ्स होता है कि मेरे को एक बाल दिखा तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ. आई कुडंट टेक एनीथिंग फर्दर. Oh God. But तेरे लिए you like hair, like hairy hairs वाली body और हाँ, आई फील इतना लाइक जो जैसा उसको वैसा रहना चाहिए मुझे लगता है. like, मैं तेरे you're not judging girls. नहीं गर्ल्स नहीं. अच्छा लड़कियों के बारे में बताना है. लड़की के पर्सपेक्टिव से do you like guys who are like clean shaven in that sense? No, I like guys with the beard and body hair also. I don't like clean shaven. You tell me, Sissy. I don't like clean. I है ना? think that's a turn off. I think कितना अच्छे से डिस्क्राइब करने बैठ गई, पूछा नहीं है किसी ने. बट आई थिंक चेस्ट एरिया आई वुड लव इफ इट्स क्लीन दैट यू कैन हग समवन प्रॉपर्ली एंड हाँ, इतना अनिल कपूर टाइप्स तो नहीं चलेगा. बट इस कॉन्वर्सेशन से आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट अ कॉन्वर्सेशन दैट मी एंड कृतिका had. We were just talking about like what do you like in a guy and how do you know that he's the one and how do you like feel attracted to a guy. And I was just talking to Kritika, I was like, I don't think so I fall for a person because of his looks. अब तू अपना भी बताइए ठीक है. I don't think so I fall for a person because of his looks. I fall because how he's treating me and how his personality is. Like I like really loud personalities and alpha personalities. I really like कि if that person is standing right next to me, he should own the place and I don't mind him being the center of attention, but I can be his plus one, but he should be the one who's holding everything, every conversation and every like who should be in charge. Like I love that trait in a guy and मुझे लगता है मुझे वो ज़्यादा attract करता है, that how that person is managing everything around him. That is more attractive to me rather than looks. You tell me, sister. Second is how he's making me secure. Like it's really tough to make me feel secure because of everything has happened. But मेरी वो boundaries of security down करना and वो करना किसी पे trust वाली जो boundary होती है मेरी वो wall down करना बहुत ज़्यादा tough होता है.
एंड अगर उसने वो कर दिया देन विन विन सिचुएशन. अब तो कोई क्या ही करेगा बट संयम बी लाइक व्हाट विन विन. और तू भी साथ में ऐसे से सुन रही है. मैं भूल गई थी एक सेकंड के लिए. कहेगा दीदी. बट फॉर मी आई थिंक अगर किसी को मेरी लाइफ में एंटर करना है, मुझे इमोशनली सिक्योर फील अगर कोई करवाता है कि आई एम देयर फॉर यू, आई कैन लिसन टू यू एंड वी कैन बिल्ड ऑन दिस, मुझे वो सिक्योरिटी चाहिए होती है पहले इमोशनली. दैट्स वन थिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली बाकी लुक्स और ये वाले फैक्टर फेड इन कर जाते हैं, बट लाइक आप जब स्टार्टिंग में देख रहे होते हो, यू वुड वांट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको वो 6-7 तो लगना चाहिए लाइक लीस्ट बंदा, so that in your head if you're thinking of a future or maybe like if you having sex with that Yeah. person. You can't have sex with that person blindfolded every time. yeah मतलब on a scale of 1 to 10 इतना attractive लगना चाहिए, but मेरे लिए उससे ऊपर मुझे लगता है emotional intelligence and emotional availability. I can't deal with someone who's not emotionally available. Yeah. Second factor I think ambition. I get turned on by that. Like if someone's Exactly. very strong headed, उसको पता है क्या चाहिए मुझे लाइफ में, क्या ग्रो करना है. I don't mind if someone's starting their career also, but if you have a vision और आपको पता है मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है. I remember डैड के साथ कभी कॉन्वर्सेशन होती थी ना पहले भी, oh what kind of guy, और बुआ वगैरह कभी बैठे होते तो मैं हमेशा ही बोलती थी उनको भी, if a guy has this capacity और capability, वो यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच सकता है ना, from 0 to 10. बट अगर उसमें नहीं है ना तो वो 10 से 0 भी ले आएगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आप अंदर से कितने चार्ज है और आप कितने स्ट्रॉन्ग हो और कितने आपका विजन कैसा स्ट्रॉन्ग है उस पे. एंड थर्ड मे बी आई पर्सनली रिस्पेक्ट पीपल जिनकी लाइफ बहुत फुल होती है. लाइक यू हैव योर ओन फ्रेंड्स, यू हैव योर ओन हॉबीज, आपकी दुनिया और भी है इसके अलावा, बिकॉज इन द एंड दैट्स हाउ यू ग्रो. दो लोग तो साथ में ग्रो करते हैं, बट वो जो ग्रोथ प्रॉपर आपकी होती है ना, वो हर सेक्टर में इफ यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, दैट्स हाउ यू ग्रो एंड कम टुगेदर एंड become like a power couple maybe. You know, once you get into a relationship, obviously everything depends on how your relationship is working and how your relationship is growing. Imagine if you are in a toxic relationship, जितना भी तू try कर ले, you would not want to work or go out of the house or talk to anyone. जितना भी कोई बंदा बोले ना, oh, I am a feminist or oh, I am an independent woman. If I am in a relationship पे कुछ भी चल रहा, I don't give a fuck. I have my It takes a lot from you Exactly, also. that- आपकी शक्ल पे आ जाता है. हाँ. Like you can't fake it also. Exactly. Like people do say that you have to have your own friends and your own company, that when you fight, you have your own friends to go to. But if you fight with the person you love and you want to spend the rest of your life with that person is everything in your life. When that thing is not going right, you'll go to work, but बहुत ऐसे डावाडोल टाइप्स में हाफ हार्टेडली जाओगे that कि यार हाँ ठीक है, बहुत स्ट्रेस में आप काम करोगे, and you would not want to talk to your friends also. Like you would want to talk to your friends about him only. अच्छा ये हुआ, but not. I don't think I really want to go out at that point of time and just chill and everything. Like people have their own coping mechanism, but I don't think so कि अब मेरा ही है, and जितना भी कोई भी ट्राई कर ले, they have their own thoughts back of the mind चल रही होती है कि ऐसे हो रहा है. So to have a very successful life, you have to have a healthy relationship also. When I bought a car, Sayam भी जब मेरे को बोल रहा था I'm so proud of you, वो मैंने कहा I am so proud of you for giving me this healthy relationship, because I know that I've worked so hard past 2 years, and because अगर ये relationship मेरी अच्छी ना होती, मे बी जैसे मैं पहली relationships में थी, मैं literally काम करना बंद कर देती, सब कुछ कम कर देती. And I told him, I was like, I listen, I respect you because you were there for me as a partner and as a friend also, and I grew with you. And that's such a sweet thing for you to also say that. And obviously I've seen Sayam also support you, and that's so true. But I've heard this from a lot of people तेरे लिए कि Diksha is glowing, Diksha is happy और ये वो, and मैं ना मन में सोचती हूँ like they don't know, it's obviously that's your journey. तेरे को कोई उठा के push नहीं कर देगा, even if you're in a happy relationship, you choose to get up daily and work. But it's a lot of it is because of Sayam also. And he's someone who's not like jealous or threatened by your success. He's someone so secure, and उसकी अपनी journey है, उसको ऐसा लग रहा है तू grow करती है, and I see him being so territorial about you also. I've seen it like in general, in scenarios, in settings also, and उसकी वजह से जब आपका एक brain part shut हो जाता है ना, like this is going right, you're happier, you're performing better in life also. And ये लोग ऐसे नहीं बोलते, सच में a healthy happy relationship helps you grow so much. That's very true. And healthy relationship is also very boring. Yeah. You know, sometimes Yeah. you tend to forget that you are in a relationship because that doesn't feel like a relationship kind of life, because it's very boring. You feel like acha there's no drama, and it gets very boring at some point of time, but then you also feel like, oh ठीक है, it's just a partner with me and we're just roaming around having coffee, and there are no sparks वैसा वाला
system, but तुझे पता है, सॉरी मैं तुझे कट कर रही हूँ, स्पार्क्स वाला भी मैं कल परसों एक पॉडकास्ट सुन रही थी अबाउट डेटिंग एंड स्पार्क्स एक्चुअली पूरी रिसर्च करी हुई है, इट्स जस्ट ट्रॉमा. स्पार्क्स सिर्फ वो होते हैं, स्पार्क्स आर नेवर कि आपको प्यार है, आप दोनों लाइक मैडली डीपली, आपका ट्रॉमा अंदर से. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चाइल्डहुड में योर फादर यूज्ड टू ट्रीट यू लाइक रियली बैडली और वो आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, अगर आपको कोई और ऐसा मिलेगा ना, फेमिलियर भी होगा ना, आपके स्पार्क्स फ्लाई करेंगे एंड यू विल फील अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन अननोइंगली, बिकॉज इन योर ब्रेन आप उसको बोलोगे कि अगर ये मुझसे प्यार कर लेगा ना तो मेरा बचपन वाला दिखा पापा मुझसे अब प्यार करने लग गए. इन दैट सेंस आप अपने बचपन वाले उसको फुलफिल कर रहे हो. ओ गॉड, क्या केमिकल लोचा होता है यार. एक्चुअली सॉरी, तू क्या बोली थी, कंटिन्यू कर. मैं भूल गई. सॉरी सिसी. नहीं, स्पार्क्स वाला है कि देयर नो प्रॉपर ऐसे स्पार्क्स अगर ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स वेरी बोरिंग एंड इट्स वेरी हेल्दी इन अ वे. ना आई हैव रियलाइज्ड दिस ग्रेजुअली. लाइक इनिशियली व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू वॉच रोमांटिक मूवीज, रोम कॉम, सारा ये देखना. एंड आप मूवीज जैसे देखते हो ना, आपको वैसी अपनी लाइफ चाहिए होती है. लाइक ओ मैं इस लड़के से मिली, मेरी लाइफ एकदम ये 0 से 100 ले जाएगा एंड विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर. वो जो होता है वो कभी मूवीज में आपको हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं दिखाते हैं. हैप्पी पे एंड कर देते हैं. लाइक आफ्टर क्या लाइफ है एक्चुअल में. बिकॉज ऑफ मूवीज आई यूज्ड टू feel that there are only fairy tales and good relationships, but then I started getting into relationships. Like I've been into 2 relationships. Then I realized कि oh, it's not always fairy tale and daisies and sunflowers. ऐसा नहीं होता. There are so many things involved. And then somehow after a point of time, like when I was single, मुझे ऐसे लगता था कि it's fine that I'm single. What if I get bored of that person after a year or so? You feel bored, but it's up to you how you maintain that boring part also. Like if I'm bored with him. तू मेरे साथ भी तो बोर होती है. हाँ, exactly. And that's how I changed my perspective of a relationship. And जब भी मैं कृतिका से भी बात करती थी, she was like, and actual में you get bored with your siblings also. You just sit in a room and वो अपने फोन पे लगी हुई है, मैं अपने फोन पे लगी हुई हूँ. And sometimes you don't want to talk, like she said. And obviously वो सारे days आते हैं. And sometimes we want to talk a lot. We want to go out, we want to experience things and travel वगैरह सब कुछ. जब भी मेरे mind में कोई भी ऐसे perspective आता है ना, like कि what if I go out and travel with him and I get bored. And मैं हमेशा ये सोचती हूँ I go out and travel with my sister also, जिसके साथ मैं 27 years से रह रही हूँ. I remember having this conversation हाँ, with you. and I still feel very good when we travel, even though we live 24/7 together. I still want to travel with her and I enjoy every second. And ये मैंने तुझसे conversation करी थी ना कि how couples want to travel, like they're living together 24/7. Why do they want to travel together? किसी और के साथ चल जाए. And then she said the same thing कि हम दोनों भी तो जाते हैं, हमें कितना मजा आता है. Like हम साथ में रहकर. And I compare my relationship with my sibling or my relationship with my parents and everything, because obviously I've been living with them since 27 years now. And अगर मैं उन लोगों के साथ बोर होके वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकती हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ भी बोर होके वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकती हूँ. इट्स नॉट दैट आई वांट टू चेंज माय पार्टनर, बिकॉज आई डोंट वांट टू चेंज माय सिस्टर, माय पेरेंट्स. And it's good to have a good support system also. मुझे ऐसा लगता है जैसे good friends, good people around you, like relationship wise भी, but वैसे भी in general, because a lot of times जब आपके कभी लाइफ में relationship issues भी कुछ चल रहे हो ना, if the other person instigates you और आपको wrong advice मिलेगी ना, you can flip the entire वो. तो you should be also smart enough कि oh, these are my well-wishers and these are like वो वाले लोग की, because sometimes people are not happy for you. Exactly. I would शायद maybe they're showing it on your face that oh like we're so happy, but they're not. Sometimes I've seen that. And happy relationship, if you're on the other spectrum, if you're maybe like right now single, I think becoming a better version of yourself so that आप इतने prepared हो, like when you get into the relationship, आपके खुद के triggers से आप work करो. क्योंकि मैंने ये देखा है, आप जब भी आप single होते हो ना, if you feel like you've healed और ये सब चीजें, like your actual healing happens when you get into a relationship, and तब आपके triggers होते हैं और वो सबके होते हैं. Like for example, if you're an anxious person, if someone's not texting you and you met someone yesterday, you'll feel like what just happened? Did I do something wrong? Oh, is this person leaving me? आपका childhood trauma trigger हो जाता है कि oh, I think the same way my mom used to leave me, this person is gonna leave me because oh, they saw me and they don't like how I talk, how I look, how I behave. But just calming yourself and knowing that you'll have you in the end. Being in a relationship is a very very beautiful thing. But जो आप अकेले अपने आप को जितना strong बना सकते हो, because in the end it's actually you, and relationship is an extension of you. It's a part of you. But आपको खुद को अपनी जर्नी इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है कि आप जब आओ तो आप दूसरे बंदे के लिए हेल्दी हो. या दैट्स ट्रू. एंड मैं हमेशा कृतिका को यही बोलती हूँ, व्हेन आई वाज अ किड मैं वाउच करती थी ऑफ लव एट फर्स्ट साइट एंड इस चीज पे, बट नाउ आई पर्सनली बिलीव यू
gradually Really fall fall in in love. love. It's very beautiful, and if you meet a person, don't judge that person on the first meeting. And if you think कि अच्छा ठीक है, अगर वो एक भी part आपके लिए fulfill कर रहा है ना, just I would recommend just Trying. I would recommend trying and just give that person a chance and don't feel like, oh, after 1 week also, after 1 month also, I don't love that person इतना ज़्यादा. You can't love a person in a month or 2 months. Personally, it takes 1 year, 1.5 year to actually fully and totally in love with that person कि हर चीज़ उसकी अच्छी लगे. Because that's when you know someone. मतलब जब when you're meeting someone again and again, you see how they behave, how they smile, उनका face कैसे lit up हो जाता है when they smile, and how like maybe as simple as their hands and how they like उनके gestures, वो सब चीजें ऐसे small चीजें वो actually, and how they treat someone else, वो you find things to love about that person. And there's a word for it. ऐसा होता है usually if in dating you fall in love very easily, like in 10 days you fall in love with someone. Limerence नाम की एक चीज होती है, like कुछ हो नहीं रहा है. I love therapy talks and podcast में भी जो लोग बात करते हैं, so I keep on listening to such podcast. उसमें वो बता रही थी this person कि जैसे बचपन में if your life has been so chaotic, your household has been so chaotic, तो आप डे ड्रीमर बन जाते हो ना. कि some people, वो बच्चे अपने माइंड में ही कुछ बना लेते हैं सीन कि I'm happy, I'm here, और वो सब इग्नोर कर रहे होते हैं. Same way when you're in a relationship, I hope I'm right. जैसे किसी ने आपको सिर्फ हाई भेजा, करा कुछ करा, आप अपने माइंड में like you've created a different scenario altogether. You're आपके माइंड में पिक्चर मूवी चल रही है, this person is thinking about me, this person loves me, this person, कुछ हुआ ही नहीं है वैसा. So I think one rule for that, उसमें ही वो podcast में भी बता रही थी कि you're allowed to fantasize about the things जो हो चुके हैं आपकी लाइफ में रियल में. जैसे आप में लियो में भी a date, you can imagine that, but not ये होगा, ये हो रहा है ऐसे करके. That's visualization also if you think about it, but some people take it उधर बिल्कुल opposite direction में. And वो उसमें वो ये explain करी थी कि you can't fall in love with someone in 15-20 days. Yes, there are rare scenarios. You saw someone and you feel like she's gonna be my wife, he's gonna be my husband, and then you get together and all's well. बट मोस्टली नहीं होता है ऐसा. यार पता है ये ना रिलेशनशिप में भी नहीं, फ्रेंडशिप्स में भी होता है. इमेजिन यू मेट अ गर्ल और अ गाय, ठीक है, फ्रेंडशिप का सिनेरियो बता रही हूँ. फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स में यू विल मीट दैट पर्सन, यू फील लाइक ओह माय गॉड, आई फील सो कनेक्टेड विद दिस पर्सन, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू स्टार्ट योर फ्रेंडशिप एंड जब टाइम हो जाएगा 6-7 मंथ्स में, आप उतना ज्यादा उससे अटैच नहीं फील करोगे. सब आपको क्या पता, शायद कोई और आपकी लाइफ में आ जाए, आप किसी से और से अलग कनेक्शंस फील करो. वो स्टार्टिंग का जो एक फेज होता है ना, दैट इज नॉट लव. एंड व्हेन पीपल से दैट, मेरे बहुत सारे मेरे सामने मेरे फ्रेंड्स की रिलेशनशिप ऐसी हुई है, 3-3 4-4 दिन में दे मीट अ गर्ल एंड गर्ल स्टार्ट सेइंग ओह आई लव दिस गाय. मैं एक्चुअली बोलकर भी आई एक लड़की को, बेबी दिस इज नॉट लव, दिस इज लाइकिंग, लाइक यू लाइक दैट पर्सन एंड या क्रश एंड यू लाइक दैट पर्सन एंड यू वांट टू नो दैट पर्सन. बिकॉज बोलते हैं ना, आप प्रिटेंड कर लेते हो बहुत टाइम तक, लाइक 6 months तक यू कैन प्रिटेंड टू बी समवन एल्स. आफ्टर 6 months you will see कि हाँ that person farts a lot. एक रूम में फार्ट, समटाइम्स दैट इज अ बिग टर्न ऑफ, एंड दैट इज अ टर्न ऑफ फॉर मी कि ऐसे ओपनली फार्ट करना है. वो मैं मम्मा पापा को भी बोलती हूँ कि नहीं, कृतिक और मेरे लिए आई थिंक सो दोनों के लिए थोड़ा सा ये मुझे ऐसा लगता है, अगर थोड़ी नहीं इंटीमेसी ऐसे बनी रहे ना, लाइक आई नो लॉट ऑफ पार्टनर्स हु स्टे टुगेदर, दे आर वेरी चिल दैट वेज, लाइक दे ओपन द डोर एंड दे विल डू देयर बिजनेस, सब चीजें. बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने किसी पॉडकास्ट में ही सुना था शायद कि कोई अपना रिलेशनशिप बता रहा था, वी बीन टुगेदर फॉर 30 years 20 years. वो बोलते कि वी स्टिल लाइक व्हेन वी होल्ड हैंड्स, व्हेन वी किस, व्हेन वी हैव सेक्स, देयर इज this is a newness to it because we have maintained that वो. Like just because you know your partner has seen you naked, अब वो इतना casual नहीं हो कि उसको maintain करके रखो. That's true. तो फिर वो सारी चीजें आपको 6 months बाद, इमेजिन अगर यही फाट वाली सिचुएशन होती है, and you will feel like oh no, ऐसे कर he stinks. तो धीरे धीरे आप वो फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं. धीरे धीरे वो एक पॉइंट भी आता है कि अब तो चाहे जितना भी फ्लॉ निकाल ले, अब तो है ही, तू मेरा है. दैट इज लव फॉर मी. और ये फ्रेंडशिप्स में भी होता है. लाइक आई हैव मेट सो मेनी फ्रेंड्स एंड आई फील ओह शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट, आई लव हर ऐसे कॉन्स्टेंटली एवरी डे मिलना है करना. फिर उसके बाद ऐसे वो नॉर्मलाइज हो जाती है चीज. देन यू सी दैट पर्सन वेरी नॉर्मली, एंड ऐसे जैसे वो पर्सन, एंड देन यू फील लाइक ओह इट्स वेरी नॉर्मल, ओके ठीक है. वो आता है ऐसा कर. I think we should discuss this in detail in a podcast. We will do that. But guys, before we end the podcast, Diljit concert. Disha, अपना experience बताना चाहेंगे. Oh God. We went to Diljit's concert 27th October वाला जो था, वो वाला हमने attend करा था. जो मैं इमोशंस की बात कर रही थी ना, आई पर्सनली फील मैंने दिलजीत के कॉन्सर्ट में बहुत ही ज्यादा ओपनली इंजॉय करा है वो. मैंने उस दिन सोचा था कि मैं आउट जाने वाली हूँ, मैं पूरा ओपनली इंजॉय करूंगी, फक एवरीवन, कोई भी. एंड पर्सनली आई फील आसपास की जो एनर्जी थी ना, दैट हेल्प्ड.
Yeah. इन अ वे कि सब ऐसे चिल्ला रहे हैं, सब ऐसे पागल हो रहे हैं कि मैं भी ऐसे चिल्ला रही हूँ, ये कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ. इट वाज अमेजिंग एंड एवरीवन, ईच वन ऑफ अस, वी वर जस्ट एंजॉयिंग, हैविंग फन, डांसिंग. भांगड़ा पता नहीं कौन से टाइप का मैंने भांगड़ा करा. मेरे फ्रेंड बोलता है भांगड़ा कर रही है, ये क्या कर रही है. बहुत फन था. एंड मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि मेरे लिए दिलजीत का कॉन्सर्ट इतना Amazing. अमेजिंग होगा और इतना टचिंग एक्सपीरियंस होगा. लाइक इट वाज रियली ब्यूटीफुल. I've shared this on my blog also, but मैं और शिवेश शूट कर रहे थे पहले, and then we had to rush. And उससे पहले भी काफी packed days थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था I'm not able to live in the present moment. And we finished, and शिवेश की tickets कहीं थी, वहाँ से we had to pick it up. And इतना chaotic, fun chaotic हो गया था. शिवेश was panicking, उसको tickets grab करनी थी कहीं से. मेरी ticket दीक्षा के पास थी. दीक्षा separately संयम, सान्या वगैरह उनके सबके साथ फ्रेंड्स के साथ आ रही थी. And we had to meet her. हम गेट नंबर 1 पे उतरे थे और हमें 14 पे जाना था. And हम मजे से चल रहे हैं, हमें लग रहा 14 आने को, बट वो इतनी दूर था. देन वी टुक एन ऑटो, एंड मतलब बैठ के मुझे मजा आ रहा था ना देखते हुए कि वो इतना पैनिक कर रहा था कि ओ गॉड. मैंने बोला दिस इज सो नॉर्मल फॉर दीक्षा एंड आई. हमारे लिए तो हमें लगता है एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, कुछ तो भसड़ होने वाली है, कहीं जा रहे हैं कुछ तो. बट आई थिंक वी टेक इट इन एज ए गुड वो कि देख लेंगे, हो जाएगी, एंड कुछ ना कुछ फिगर आउट हो भी जाता है ऐसे. इट्स लाइक आई कांट फंक्शन लाइक दिस, आई नीड माई लाइफ टू बी सॉर्टेड. बट फाइनली वी गॉट द टिकट्स, वी एंटर्ड एंड वी हैड फूड एंड ड्रिंक्स. एंड देन जब हम स्टेडियम पे थे तो आई थिंक आई शेयर दिस विद शिवेश ऑल्सो एंड तेरे साथ भी ऑल्सो. वो लाइक व्हेन ही एंटर्स वो कुछ अटेंशन डिमांड नहीं करता. लाइक ही इज नॉट लाउड, ही इज नॉट aggressive, he's not like but you feel like giving him attention. You feel his aura is so different. मुझे इतने सारे सॉन्ग है, कुछ मतलब मुझे शायद उसकी लिरिक्स भी नहीं याद होंगी, बट आई वॉज वाइबिंग ऑन अनदर लेवल. आई वॉज जंपिंग एंड इतना मतलब एनर्जी हमने वहाँ पर वो करी थी. एंड वी स्टिल वांटेड टू स्टे बैक थोड़ी देर के लिए. हम खत्म होने से पहले निकल गए थे कि ट्रैफिक होगा और हम फंस जाएंगे. सो आई थिंक हमने लास्ट के 2 सॉन्ग्स मिस कर दिए थे. बट लाइक वी हैड सो मच फन. एंड मेरा बहुत टाइम से मन है कि मन था भी कि मुझे कॉन्सर्ट्स अटेंड करने हैं, मुझे ये ट्राई करना है, वो करना है. सो इट वाज लाइक वन new thing that I did for myself, and I was really happy. And plus the group हम सब साथ में बहुत enjoy कर रहे थे. So बहुत ज्यादा फन था. कोई नहीं सी मैनिफेस्टिंग दिलजीत दोसांझ हमारे इस काउच पे बोलेगा कितना सिस्टर्स आपा खुराना सिस्टर्स दे नाल. हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पक्का इस पे करेंगे, टर्न ऑफ्स एंड टर्न ऑन्स. एंड whoever is listening to this podcast, just comment down below what are your turn ons and turn offs, and we'll talk about it in the next podcast, you know. Yes, we'll do that. And hopefully you enjoyed the podcast. If you're listening this abhi aap sone wale ho, ya maybe you're driving, and maybe like you're just randomly cleaning your house or doing something, anything, I hope we made you feel loved. And साथ में आपको ऐसे लगा आपने हमारे साथ conversation करी है. Yeah, that's about it. Hopefully you're enjoying the podcast so far in general also. If you're not, start enjoying, please. Bye guys. Love you. Bye.